हम्म, क्या मुझे म्यूट करना है, तो इस पर टिक करूँ? टिक करो तो म्यूट कनेक्ट नहीं हुआ है शायद। फोन आ गया। हेलो। हाँ 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 सर। हाँ सर। हाँ नहीं हो जाता। Sarita, please mute yourself. Today, in the media conference with Lal Goel, which is brought to you by V4 News, Karu News, V4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon se, Samvad Sarokar News, Bharat Post News, Gyan, and Organ Donation India Foundation. Our endeavor is to enlighten you with the current topic. And today's topic is not only current, but very, very important. The topic is food that protects from disease. But before I will go on my main topic, I would like to inform you that today world is observing World Tuberculosis Day. World Tuberculosis Day is observed on 24th March each year, is designed to build public awareness about the global epidemic of tuberculosis TB and efforts to eliminate the disease. In 2018, 10 million people fell ill with TB and 1.5 million died from the disease, mostly in low and middle income countries. This also makes it the leading cause of death from an infectious disease. As per the World Health Organization WHO, total TB cases in India were 26.4 lakhs in 2019. 4,36,000 people lost their life due to tuberculosis in 2019, which is more than total number of deaths due to COVID in last 1 year. Media conference with Lal Goel hopes that government as well as civil society will take this disease seriously and start taking all the precautions as we are taking for COVID. Now coming to our main topic, food that protects from disease. Humans need a wide range of nutrients to lead a healthy and active life. For providing these nutrients, good nutrition or proper intake of food in relation to the body's dietary needs is required. An adequate, well-balanced diet combined with regular physical activity is a cornerstone of good health. Poor nutrition can lead to reduced immunity, increased susceptibility to disease, impaired physical and mental development, and reduced productivity. A healthy diet consumed throughout the life course helps in preventing malnutrition in all its forms, as well as wide range of non-communicable diseases, NCDs, and conditions. But rapid urbanization
Globalization, increased consumption of processed food, and changing lifestyle has led to a shift in dietary patterns. People are consuming more food high in energy, fats, free sugars or salt, sodium, and many do not eat enough fruits, vegetables, and dietary fibers such as whole grains. So that these all factors are contributing to an imbalanced eating. A balanced and healthy diet will vary depending on the individual needs. For example, age, gender, lifestyle, degree of physical activity, cultural context, locally available foods, and dietary customs. But the basic principles of what constitute a healthy diet remain the same. A balanced diet is one which contains variety of foods in such quantities and proportion that the need of all nutrients is adequately met for maintaining health, vitality, and general well-being, and makes a small provision for extra nutrients to withstand short duration of leanness. So to discuss this very, very important topic today, the food that protects from disease, we have a very elite, those who are having full knowledge about this particular subject. Panelists are with us. So I would like to invite my first panelist guest, and he is Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand is a senior psychiatrist and marriage counselor. Dr. Rajiv Anand passed his MBBS in 1976 and did MD in psychiatry in 1980 from King George Medical College, Lucknow. He opted to serve his country when it was very common to settle abroad for brighter future. He has been serving society with his base in Mumbai. He has clients all over India as well as in many other countries. He was honored with Lifetime Achievement Award by AMA. He has conducted more than 300,000 workshops for different groups and companies with audience size of 10 to 800. His television program on various channels have been widely appreciated for his forthright and practical approach. He is leading in the field of mental and emotional well-being for 41 years. He was president of IMA for 2 times. He was interviewed in several talk shows in domestic and international. Welcome, Dr. Rajiv Anand on our show. Dr. Rajiv Anand, today's topic is food that protects from disease. And we know that food also plays a very, very important role, not only for physical health, but also for the mental health. So we would like to know your views on food that protects from disease. Dr. Rajiv Anand, please. Thank you, Mr. Lal. And good morning, my fellow panelists, Dr. Jenny, Avani Mehra, and Sartaji from Meerut. I'm aware that I'm sitting in the august company of people who are experts as regards food is concerned. Dr. Jenny, even though successfully practicing dental surgery in specialization of periodontics, yes, she's passionate about improving human life by bringing requisite change in the food habits. I'm a psychiatrist. Some people may see me, what am I doing over here? But I'm concerned with the biology of the human being, concerned with the psychology of the human being, and also concerned about the lasting happiness all throughout the life of the human being. And often I ask this question to myself. हिंदी भाषी हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए हम थोड़े समय के लिए हिंदी में बात करना चाहेंगे. जैसे कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, उस सीरीज का है, कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी शायद कभी यूनिवर्सिटी की किसी एजुकेशन में डिग्री लेने नहीं गए. हमारे पास कागज की डिग्रियां हैं, मगर हमें ये अच्छी तरह याद है कि हमारे माँ बाप कभी इतनी दवाइयां भी नहीं खाते थे जितना हम लोग खाते हैं. और एक बहुत सिंपल सा आंकड़ा अगर कहा जाए तो हम लोग 1 महीने में जितना दवाई में खर्च करते हैं उतने में तो शायद हमारे घर का पूरे साल का खर्चा होता था. हमारा दवाई का बजट जो है 1 महीने का, वो हमारा पूरे साल का घर का खर्चा था, 60s में 50s में. तो वो लोग ज्यादा समझदार थे या हम ज्यादा समझदार हैं? अगर हम किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के किसी भी 10 लोगों से पूछें कि भाई पिछले 10 साल में तुम कितनी बार बीमार पड़े हो, कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो,
तो शायद एक या दो ही बंदा निकलेगा जो कहेगा कि पिछले 10 साल में ना तो मैं बीमार पड़ा हूँ और ना ही मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ी है। जबकि हम याद कर रहे थे बचपन में तो कितनी बार हमारे माँ बाप को हमने बीमार पड़ते देखा था या हॉस्पिटल में एडमिट होते देखा था। वो सवाल आता है मन में कि ये कहाँ आ गए, हमने पाया कितना है और खोया कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भ्रम में कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हम बहुत जानते हैं, हमको ये भी पता है कि मैक्सिकन फूड क्या है, इटालियन फूड क्या है, थाई फूड क्या है, यूरोपियन फूड क्या है, अमेरिकन बर्गर क्या है, ये सब तो हम बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मगर हम ये नहीं जानते कि हिंदुस्तानी फूड क्या है, जो अपने आप में पूर्ण था, जो अपने आप में हमको बीमारी से रोकने में सहायक था, जो हमको हर हिसाब से स्वास्थ्यवर्धक था। इस टॉपिक को लेने की मेरी तीव्र इच्छा काफी समय से थी और मैं मिस्टर लाल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये टॉपिक लिया जाए और इस पर उन लोगों को आमंत्रित किया जाए जो इस विषय पर अच्छा ज्ञान, अच्छा अनुभव रखते हैं। और सत्ता जी इस बात से वाकिफ है कि मैं इनको पिछले 4 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। 4 महीने के बाद उन्होंने मुझे आज अपॉइंटमेंट दिया है। और डॉक्टर जिनी जो है बॉम्बे में होते हुए फिर भी वो बाहर जाती रहती है, तो उनसे बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। अपनी काफी समस्याओं में बिजी थे और वो फ्री हुए तो उनने समय लिया। तो बात है खाने की, वो खाना जो हमें बीमारियों से बचा सके। वैसे तो कोई विशेष खाना नहीं होता जो बीमारियों से बचा सके, हालांकि हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर खाने के बारे में ये भी जानना समझना जरूरी है कि खाने का उद्देश्य क्या है। शरीर को पोषण करना, शरीर को एनर्जी देना, शरीर को पावर देना, जो कार को पेट्रोल देता है, जो प्लेन को एविएशन फ्यूल देता है, और वो उसको चलाने के लिए, उसको काम करने के लिए शायद हम में से काफी लोग जो उत्तर भारतीय हैं उनको भी और जो दूसरे प्रांतों से उनको भी, हम लोगों ने खाने को खुशी का एक माध्यम बना लिया। कोई भी ओकेजन हो, खुशी का हो, दुख का हो, बर्थडे हो, मुंडन हो, शादी हो, पार्टी हो, किसी की 13वीं हो, किसी का चौथा हो, और हम खाना बहुत ज्यादा मात्रा में खाना चाहते हैं बिना इस बात का आभास हुए कि कहीं हम अपने दुश्मन तो नहीं हो रहे हैं। जो कि शायद शायद को भी शब्द को हटा लेना जरूरी है कि हकीकत यह है कि हम सब लोग भोजन के बारे में अपने दुश्मन, और हम जिन जिन बीमारियों का नाम लेते हैं और जिन जिन बड़े बड़े हॉस्पिटल के बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं कि वहाँ ये है वहाँ ये है, हम खुद अपनी तो अंदर झांक के देखें कि हमने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया है। क्या हमें किसी भी उम्र में वो खाना खाने की समझ है जो हमें उस उम्र में, उस समय में, जीवन के उस दौर में हमारे लिए सहायक होगा, या हम वो खाना खाते आ रहे हैं जो काफी लंबे समय से प्रथा चली आई है खाना खाने की, या हम उस मात्रा में खाना खाते चले आ रहे हैं जो हमने लोगों को खाते हुए देखा है कि जब तक डकार ना आए, जब तक पेट भर ना जाए, जब तक हल्की सी सुस्ती ना लगे, या लोगों में काफी कहने की प्रथा है कि भाई दबा के खाना है वगैरह वगैरह। जबकि ये चीज अब काफी लोग समझ चुके हैं। काफी जगहों पर अलग अलग तरीके से साइंटिफिक अंदाज में इस बात को समझा जा चुका है कि हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस जब होती है, हमारे ब्रेन की बेस्ट परफॉर्मेंस जब होती है जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है। इस दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग वो हैं जो खाना वो खाते हैं जो खाना 2 घंटे 2.5 घंटे में पच जाए और पेट में खाली हो जाए। 2 ढाई घंटे के बाद फिर जरूरत होगी तब फिर खा लेंगे। लेकिन शायद हम लोग वो खाना खाते हैं जो 4 5 6 घंटे तक हैवी हो, खाने के बाद सुस्ती हो, खाने के बाद नींद सी लगे, खाना खाने के बाद हम उतनी परफॉर्मेंस ना कर पाए, काम में ध्यान ना दे पाए। हकीकत यह है कि प्रकृति ने, सृष्टि ने हमारे चारों तरफ इतनी बहुत सुदृढ़ व्यवस्था की हुई है कि अगर हम हाई स्कूल पास भी नहीं है तो भी कोई कोई गम नहीं। प्रकृति ने इतनी व्यवस्था की हुई है कि वो चीजें जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने में बहुमूल्य रूप से सहायक हैं। अवनी, आप शायद गुजराती हैं और आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है, तो इतनी व्यवस्था की हुई है कि जो भी चीजें हैं उस पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से, अगर गर्मी है तो वाटर रिच फ्रूट्स आते हैं, अगर सर्दी है तो दूसरे फ्रूट्स आते हैं। जो जो जैसा मौसम है उसके हिसाब से सब्जियां, उसके हिसाब से फ्रूट नेचर ने व्यवस्था की हुई है। हमको कुछ भी ज्यादा बिना अकल लगाए
उन चीजों को जो सीजनल है उनको यूज करके, कोई जरूरत नहीं है हमको जाके हम रिसर्च करें, कोई जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़ी किताबें पढ़ें। पढ़ें तो बहुत अच्छा है। मेरे पास भी करीबन 50-60 बुक हैं न्यूट्रिशन पर, डाइट पर, फूड हैबिट्स पर, और मैं काफी फैसिनेट होता हूँ कि इतना कुछ लिखा जा चुका है, इतना कुछ रिसर्च किया जा चुका है। एंड लाइक Ginny, who has a different profession but has interest in food thing, Sarita and Avni are professional in their field. मैं कई बार सोचता हूँ कि शायद हमारे मेडिकल वर्ल्ड में इस स्पेशलिटी को, न्यूट्रिशनल मेडिसिन है, इसको समुचित यूज स्थान नहीं दिया गया। हम सब लोगों ने बहुत बड़ी मॉडर्न साइंस डेवलप कर ली है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम डेवलप कर लिया है कि जब तुम्हें बड़ी बीमारी हो जाएगी तब तो हमारे पास आना, हम एक्सपर्ट हैं तुमको बड़ी बीमारी से रिहात करने के लिए, राहत दिलाने के लिए। मगर क्या हमारे मेडिकल वर्ल्ड ने इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश की है कि तुमको बड़ी बीमारी हो ही नहीं, तुम सिंपल तरीकों से, सिंपल खान पान की कुछ चीजें बदलाव लाके तुम बड़ी बीमारी से अपने आप को बहुत लंबे समय तक दूर रख सकते हो कि तुमको हमारी जरूरत ना पड़े। भले ही हम कितने बड़े एक्सपर्ट हैं बड़ी बीमारी को डील करने के लिए, चाहे वो कार्डियक है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो एस्थमा है, चाहे रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन है, हमें कभी मॉडर्न मेडिकल वर्ल्ड ने उस चीज को जोड़ने दिया जिसके ये दोनों एक्सपर्ट हैं, सरता भी और अवनी भी। और ये लोग बताएंगी जिसके बारे में हमें भी सुनने की बहुत उत्सुकता है कि अगर हमने बाकी मेडिकल डिसिप्लिन को सही इंपॉर्टेंस दी है तो इसको उतनी क्यों नहीं दी। हालांकि समय बदलने के साथ में अब ये चीज हो रही है कि आज हर अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में डाइटिशियन एक मस्ट, पहले ये सिस्टम नहीं था। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि डाइटिशियन, उनका काम जो भी है कि हर पेशेंट के पास किस तरह का खाना भिजवाना है और उसका सुपरवाइज करने के अलावा, फिर भी हमें लगता है कि बहुत कुछ है गैप पेशेंट की सोच में, पेशेंट की माइंडसेट में, या इन जनरल। हम पेशेंट भी नहीं कहना चाहेंगे, हम भी एक साधारण इंसान हैं और हम जरूरी नहीं कि अपने आप को पेशेंट हैं। हमारी सोच में, हमारी मूल, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है उसमें, या हमारे विचारधारा में बहुत दूरी है कि डाइटिशियन का रोल क्या है, न्यूट्रिशनल मेडिसिन का रोल क्या है। जितना थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने का मौका मिला, और मैं उस विचार को व्यक्त करने में बिल्कुल हिचक महसूस नहीं करता कि अगर हम बहुत जल्दी जाग जाएं, बहुत जल्दी समझ जाएं, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को हम होने से रोक सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, हमने भी देर में जागे हैं, हमको भी बाईपास हो चुका है, हमको भी हार्ट की तकलीफ है, लेकिन जब भी जागे तभी सवेरा। तो अगर हम सही समय पर जाग जाएं, 30 में जाग जाएं कि खाने का महत्व क्या है, खाना कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अब जाके हम 60 में अगर हम एक बॉल पूरी सैलेड की खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, तो हमने 30 साल पहले क्यों नहीं किया? या अब जाके 60 में हम महसूस करते हैं कि सीजनल फ्रूट्स खाए जाएं, तो हमने ये बात 30 साल पहले, 35 साल पहले क्यों नहीं की? शायद हम ये बहाना कहना चाहेंगे कि हम व्यस्त थे, हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास समझ नहीं थी। तो हमने उस समय की कमी को, उस समझ की कमी को, उसकी कीमत पे की है। हॉस्पिटल में 10-10 दिन लेट कर कीमत पे की है, बाईपास करने के बाद कीमत पे की है, हॉस्पिटल की दीवार को, अस्पताल की छत को देखकर कीमत पे है। उसके बाद जो लगता है कि हमारी उम्र के कुछ साल कम हो गए हैं। तो इन बातों को कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप खाने के बारे में जितना जान सकते हैं, जो आप सुनेंगे अगले 1 घंटे में, आप उतना बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने को बचाएंगे, बहुत बड़े बड़े खर्चे से अपने को बचाएंगे, और उस तकलीफ से अपने को बचाएंगे जो बीमारी होने के बाद, हॉस्पिटल जाने के बाद, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद होती है। तो पहले राउंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सबको सुनने के बाद फिर दूसरे राउंड में शायद कुछ और टिप्पणी हमारे पास होगी, वो भी करें। बैक टू यू सलाम। Thank you very much, Dr. Rajivanand. And what Dr. Rajivanand says, that in older times, when the grandparents or the great grandparents or even the fathers of the generation which Dr. Anand belongs, he says that they were not having those types of disease what we are seeing now, and they were eating food, very healthy food. They were not that educated what we are all, but still the food quality was very good. Nowadays, we have seen a trend that how the people are eating
or junk foods, etc. And that's why so many diseases are there. He emphasized why we are not making the dietitian's role very important. Although he says nowadays the hospitals are having the dietitians, but it's not that common, and that people are still not comfortable to go and consult the dietitians for their particular diet. So unless the food, we are not going to take a particular food or that food which protect us from the disease, it's not easy to get rid of the diseases. Although according to Dr. Rajivanan, many diseases can be avoided if we take proper food. So thank you very much, Dr. Rajivanan, for giving your views. And we know that the food is one of the, I will say the main factor for many diseases, which I'm sure that today's program will highlight how the things can be avoided, if the diseases can be avoided if we will take proper food. Thank you very much, Dr. Rajivanan, for your opening remarks. Definitely in the next round, you will be giving more, you will highlight more, plus I'm answering my question. Now, I would like to invite my next panelist guest, and she is Miss Sarita Vashne. Miss Sarita Vashne is the consultant nutritionist. She was graduated from prestigious GB Pant University, Pantnagar. She worked as dietitian at LLRM Medical College, Meerut. She is the former president of IMA Meerut. She is very active in raising health-related issues of women and children at various forums. Welcome, Ms. Sarita Vashne, on our show. Ms. Sarita Vashne, you have heard Dr. Rajivanan, and Dr. Rajivanan has clearly stated that the food is very important. Unfortunately, still we are unaware, or we don't know, or we are going towards that food which is not which is not healthy, and thus we are having so many diseases. Now, you being a nutritionist yourself, and you have been a dietitian at a very prestigious medical college at Meerut. So we would like to know now your views on today's topic, that is the food that protects from disease. Miss Sarita Vashne, please. गुड मॉर्निंग ऑल। अभी डॉक्टर राजीव आनंद ने जो बताया था बहुत कुछ ठीक बताया था कि गुड, अगर हम फूड, न्यूट्रिशियस फूड अगर लेते हैं तो हम डिजीज फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जनरली लोगों की थिंकिंग होती है कि फूड जो है एंजॉयमेंट के लिए, अपने स्टमक को फुल करने के लिए, उसके लिए खाया जाता है। नहीं, अगर हम न्यूट्रिशियस फूड को खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं हम, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, मिनरल सब होते हैं, तो हम डिजीज फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सपोज हम हेल्दी फूड नहीं लेते, बहुत सारी डिजीज हमको मिल जाती हैं, एनीमिया, एलर्जी और रिकेट्स वगैरह, बहुत सारी डिजीज जो होती हैं हम गुड फूड ना लेने से होती है। गुड फूड का मतलब होता है कि हम अपनी डाइट में कलरफुल चीज को लें, दाल, वेजिटेबल, कार्ब्स और मिनरल, विटामिन वगैरह सारा फूड अगर हम लेते हैं तो हमारी बैलेंस डाइट जो होती है वही हमारा गुड फूड कहलाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका मतलब होता है कि बस एक बार को स्टमक को फुल कर लिया, फिर 6-7 घंटे बाद खाना खाया। ये रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। अगर आप शॉर्ट इंटरवल पर गुड क्वांटिटी और न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, डेफिनेटली आप बहुत सारी डिजीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी डाइट में एक तो सीजनल फूड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारे सीजनल फूड मिलते हैं हमें डाइट में वो ही रखने चाहिए। होममेड फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। टिन फूड जो होते हैं, जंक फूड जो होते हैं, उन्हें अपने डाइट से निकाल देना चाहिए। जंक फूड में क्या होता है, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, जो कि हमारे डिजीज हमें देते हैं, हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा वो नहीं करते। हमारे फूड में एंजॉयमेंट तो मिलता है, टेस्ट मिलता है, लेकिन हमें न्यूट्रियस फूड नहीं मिलते। हमारी किचन आप देखिए, हमारी किचन में इतने मसाले होते हैं, वो मसाले केवल स्वाद को नहीं बढ़ाते, हर मसाले की एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। अगर हम उन मसालों का भी ठीक यूज करें तो भी हमारी डाइट में एक बैलेंस डाइट आती है। इसलिए न्यूट्रिशियस फूड का होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। शॉर्ट इंटरवल पर आप डाइट को लीजिए, एक टाइम में बहुत सारा फूड खाकर मत लीजिए। सीजनल फूड लीजिए और जो फूड अवेलेबल है हमारे, उनको लीजिए।
फूड का जो होता है वो हर फूड हर आदमी के लिए सूट नहीं करता, अकॉर्डिंगली उनका वर्क, किसी का वर्क बहुत हैवी होता है, जैसे मजदूर लोग हैं, उनको उस तरह का फूड हमें प्रोवाइड करना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका सिटिंग वर्क होता है खाली, उनको उस तरह का फूड अवॉइड करना चाहिए। सबका फूड पैटर्न एक सा नहीं होता, इसलिए हमें किस तरह का फूड, किस टाइप का फूड ये हमें लेना चाहिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फूड में आप जब अपना लंच करने बैठे तो आपकी थाली में कलरफुल फूड इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। दाल येलो हो गई, कर्ड व्हाइट हो गया, राइस व्हाइट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन हो गई। इस तरह के हम सारे फूड्स अगर एक टाइम में लेते हैं शॉर्ट क्वांटिटी में, ये नहीं है कि हमने किसी फूड को लिया है तो बहुत सारी क्वांटिटी में हमने एक टाइम में उस फूड को खा लिया। जंक फूड को हम, जितने हमारे पैकेट नमकीन वगैरह हैं, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूट्रिशियस फूड से। नमकीन को जैसे हम ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड मखाने, रोस्टेड चने, इस तरह के फूड्स हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें तो हम अपनी डाइट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये डेफिनेटली वेरी ट्रू सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि न्यूट्रिशियस फूड हमें डिजीज फ्रॉम लाइफ देता है, डिजीज से हमें दूर रखता है। इसलिए हमें हमेशा डाइट पर, न्यूट्रिशियस फूड पर, लोकल अवेलेबल फूड पर, सीजनल फूड पर, इन पर ध्यान देना चाहिए। टिन फूड हमें अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना चाहिए। और बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फूड ही हमें अच्छा न्यूट्रिशन दे। होममेड फूड होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज होती है। चना मुरमुरा जनरली लोग खाते थे, चना मुरमुरा लोग कहते हैं अरे ये चना मुरमुरा क्या खाना, लेकिन उसमें बहुत सारी वैल्यू होती है, प्रोटीन मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इन चीज का कॉम्बो अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली हम डिजीज से दूर रहेंगे। Thank you very much, Ms. Sarita Vashne, for giving your views. And what Ms. Sarita Vashne says, that healthy food plays a very important role to keep the disease away. And she mentioned that we should have a colorful food which consists of dal, which is yellow color, leafy vegetables green color, curd in a white color. So all those different colors food if we will have. And she says the role of those what we are using, all masalas in our day-to-day food in our kitchen is very important. But we should know how to use, how much to use, the correct quantity. Then only it is very beneficial. She also says that the food, if we are taking, we should not keep it interval for 6 hours or so. It should be after every 2 hours. But in a very small quantity, not that we should take a big portion and then we will have problem. So according to her, this plays a very important role, the food, and the diseases can be avoided. Thank you very much, Ms. Sarita Vashne, for giving your views. Now I would like to invite my next panelist guest, and she is Dr. Zini Nanda. Dr. Nanda is a endodontist at Mumbai. She completed her post-graduation in endodontics in 2000 from Bapuji Dental College, Karnataka. Since then, she is into dental practice at Mumbai. Dr. Zini Nanda, you have heard Dr. Rajiv Anand as well as Ms. Vashne, and both have emphasized that the healthy food is the key for a healthy life or disease-free life. Now, we would like to know from you your views on food that protects from disease. Dr. Zini Nanda, please. Good morning, Mr. Goel, and thank you very much for making me a part of this eminent panel, Dr. Rajiv Anand, Abniji, and Sarita ji. Yeah, for today's topic, it's a very relevant topic, whether it is with a nutritionist or a medical practitioner or a dentist. So I would like to also share whatever knowledge I have pertaining to this topic today. So when we talk about the food for a disease-free life, I would like to quote Hippocrates over here, who has very rightly said, let food be thy medicine and medicine be thy food, which means our food should be our medicine and our medicine should be our food. It is very rightly said. Instead of, as Dr. Rajiv correctly quoted, that instead of spending the amount of money that we spend on medicines, if we would spend that much on the correct kind of food to consume,
we will be able to lead a healthy lifestyle for a longer period of time, which everybody nowadays, the current topic among across all age groups is how we can lead a healthy lifestyle, or uske meaning that without how we can slow down our aging process, and by slowing down our aging process, how we can lead a lifestyle which is longer, at the same time it should be healthy as well. What I feel is that we should be these days we talk a lot about creating positive relationships and having positive thoughts. We should pay little thought about creating a positive relationship with our food as well. The moment we the moment we do that, it's going to make a lot of difference in each and everyone's life. What we can do is, first most important thing is eating the correct food at the right time, in the right quantities, is the most important thing for making a food be converted into medicine, as we are talking about. Also here, I would like to quote Bethany Frankel, which I found it very interesting what he has said about our diet, that our diet is like a bank account. Making good food choices should be our excellent investment. Why am I saying this? I will just elaborate this very shortly. I hope I'm not too fast. No, please go ahead. Please go ahead. Yeah, okay. Okay. So, what I would, again, as continuing with the same thing, I would like to say that we all know what a balanced diet constitutes, that it should have the we should go low on the simple sugars. We should have adequate amount of protein, balanced amount of fats, high fiber food. This is what we all know. But what is more important for us to emphasize these days is having natural food. By natural food, we mean the raw vegetables. We mean the food which gives us antioxidants. We mean foods which are colorful, as Sarita ji mentioned. Probiotic foods is another important type of food we should incorporate in our diet, which is healthy for our gut bacteria. These might seem like to be a big changes in our to bring about in our lifestyle, but there is no need to try to incorporate everything all together. Just taking small steps, by taking small steps each day, we can try to reach our goal of incorporating food into the right kind of food into our daily diet. For example, one is that I would recommend trying to avoid eating anything which comes out of a packet. The moment you open a packet to eat something, we should understand that something has been put in to preserve that for a longer period of time. Some additives are there. So that is one small change which you can incorporate. Try to eat as many raw and natural things as possible. So these tiny steps, if we take towards tiny changes, if we do, it can help us a lot in the long run. Now, the food that we eat, it should be either safest and the most powerful form of medicine, and not the slowest form of poison for us. Foods that we eat regularly will determine whether or not we will become ill or remain healthy in our old age. By this, I mean the vegetables, fruits, meats, oils, grains, which have antioxidants, phytonutrients, vitamins, minerals, fatty acids, fibers, and much more. Green vegetables like kale, wheatgrass, spinach, fresh vegetable juices dramatically slow our aging process. Probiotic foods like yogurt, kombucha, they can be beneficial to the bacteria which live in our digestive tract. Omega-3 foods like walnuts, chia seeds, flax seeds, they can help in controlling the inflammation. Bright colored foods are always rich in antioxidants. High fiber foods like cruciferous veggies, avocado, coconut,
They help in reducing cholesterol and helps to improve the heart condition. Now, all these foods that I mentioned, they are all easily available. They are all local, and all of this can be incorporated easily into our diet system. Just one kind of condition which is very common in India, I would like to highlight that. I know I'm a dentist, but I'll just like to highlight this point, which is obesity. Now, let's all get this straight, that medicine is not healthcare. Food is healthcare. Medicine is only sick care. So obesity, which is a common problem which is faced by the Indian population. Why is it so? It appears that we are overfed and undernourished. I hope I'm clear with what I'm saying, that we are overfed and we are undernourished. Now let's visualize it this way. We have current accounts, saving accounts, and fixed deposit in our banks. Current account is when we are constantly eating and topping up our balance. So there is no chance of exhausting this saving account, which is your abdominal fat, and fixed deposit, which is your fat around your organs. So if we refrain from frequent eating and choosing healthy food options, we won't top up our current account, but we'll increase the expenditure through saving accounts and the fixed deposits. So now, as a dentist, I would like to share a good news with all of you all regarding dental decay. Dental decay is entirely preventable, and what we eat plays a big role in this. For example, if you eat crisp fruits and raw veggies like apples, carrots, celery, you can help to clear the plaque from the teeth. You can increase the salivation. And the earlier this plaque gets cleared up from our teeth, the lesser the chances of acids attacking our teeth and causing the tooth decay. I would also like to very much emphasize that refrain from having fresh fruit juices. Rather, encourage the habit of munching onto your fruits. The more you munch onto fibrous fruits, it will stimulate more salivation, and more the salivation, lesser the chances are of dental decay. Another important factor is the time that we eat our food, and the timing that we are taking to eat our food. Ideally, eating these raw foods should be encouraged after your meals. Again, because when you munch onto the raw fruits after the meals, they will help to clean the teeth, help to massage the gums, and it will wash away the extra food particles which is left after every meal. Role of drinking plenty of water through the day, during and after meals, has been emphasized enough on all platforms. And I would still like to emphasize it still more here, that consuming water as much as possible through the day, 3 to 4 liters, what is considered, should be encouraged. So friends, eat well, respect your body, listen to it. You will realize that it is always telling you that not to abuse it. Use food as fuel. With this, I would like to end my talk as of now. Okay, thank you very much, Dr. Zani Nanda, for giving your views. And Dr. Nanda, although she is a dentist, but she says that the food even plays a very important role for the good teeth, and she has given the examples for that. But her emphasis are that you must eat raw vegetables, raw fruits, avoid fruit juices, and have the healthy food. So then we can keep the disease away. And as per because being a dental person, she has mentioned which types of food we should have, especially the fruits and raw vegetables. They will be added advantage for a good teeth as well as for the good health. So thank you very much, Dr. Zini Nanda, for giving your views. And I'm sure today's program is quite enlightening to all our viewers, because the views which are coming from the experts are giving us the food of thought for the thought that what food we should eat, healthy food, so that the diseases can be avoided. And as Dr. Rajiv Anand initially says, that instead of paying so much money to the doctors or to the hospitals, if we will spend some more money on our food, good quality of food, healthy food,
then we can avoid those expenses. Thank you very much, Dr. Zini Nanda, for your views. Now, I would like to invite my last but not the least panelist, and she's Avni Parekh. She is a senior practicing food therapist and fitness consultant for the past 23 years. She is based in Mumbai but consults online across the globe. Her work has been acknowledged by the Chief Minister of Maharashtra in 2018 with prestigious Healers Award. Welcome, Ms. Avni Parekh on our show. Ms. Parekh, you have heard the views of Dr. Rajiv Anand, Ms. Sarita Varshney, and Dr. Zini Nanda, and all have emphasized that the healthy food full of nutrition is a key to keep the diseases away or protect. So we would like to know now your views on our today's topic, that the food that protects from disease. Ms. Avni Parekh, please. Hello, dear viewers, and thank you so much, Lal sir, for arranging this kind of a platform. जो टॉपिक आपने चुना है ये व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की टॉपिक है. लाइक डॉक्टर राजीव आनंद सेड कि जब कोई बड़ी बीमारी होती है तब हम सोचते हैं कि डाइट क्या लेना चाहिए, लेकिन फूड इज फ्यूल जो हम रोज खाते हैं. तो अगर आपने फ्यूल अच्छा यूज किया है सालों साल, तो बड़ी बीमारी पहले तो होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो अगर हुई भी फॉर सम रीजन, तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी उस लेवल तक होगी कि वो आराम से उस चीज को डील करके आपको उसमें से हंसते खेलते बाहर निकाल देगी. डॉक्टर राजीव आनंद की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्लीज इन्वेस्ट इनटू योर फूड हैबिट्स फ्रॉम अ यंगर एज. ज्यादातर लोग 35-40 साल पे जब उनको ब्लड प्रेशर आता है या जब उनको वजन बढ़ जाता है, डायबिटीज आता है, तब लोग सोचते हैं कि इस पे क्या खाना चाहिए, या उनके फिजिशियन कहते हैं कि आप अपने डाइट पे काम करो, तो वो डाइटिशियंस के कंसल्टेशन में आते हैं. लेकिन दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप समझे कि रोज हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हम मस्ती के लिए नहीं खाते हैं, वो हमारे शरीर को बनाता है और वही चीज हमारे शरीर को बिगाड़ भी सकता है. फिर सरिता मैम ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया कि हर फूड ग्रुप, या आप कह लो कि रंगीन डाइट खाना चाहिए. सो इसमें से हमारा टेक अवे मैसेज क्या होता है कि हर एक फूड ग्रुप इम्पोर्टेंट होता है. आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि अलग अलग टाइप के डाइट्स मार्केट में चलते हैं. ज्यादातर वेट लॉस की बात कर रही हूँ मैं. किसी ने कीटो डाइट कर लिया, किसी ने हाई प्रोटीन डाइट कर लिया, किसी ने जीरो कार्ब डाइट कर लिया, किसी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया. अब होता क्या है, काफी सारे जो डाइट्स है इनमें न्यूट्रिएंट्स का एक तालमेल जो होता है उसको कम ज्यादा करके बॉडी को थोड़ा कंफ्यूज करके वेट लॉस करने की प्रक्रिया होती है. सो sometimes yes they do help, I am not denying, but on a larger front I have noticed in my practice over these last 20 years that few diets they cause more harm to your body and to your metabolism rather than doing good. So सबसे अच्छा फंडा क्या है, एक अच्छा बैलेंस डाइट खाओ और मस्त रहो. So when I say balanced diet, इसमें हम हर एक फूड ग्रुप को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो दूध दही पनीर हो गया, चाहे वो सब्जियां फल हो गई, चाहे वो अनाज चावल ज्वार बाजरी पोहा उपमा हो गया, चाहे वो दाल कठोल कड़धान्य हो गया. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो पानी को भी छठा न्यूट्रिएंट गिनने की बहुत जरूरत है. काफी सारे लोग पानी कम पीते हैं और अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस चीज का ध्यान तक नहीं होता है जब तक कि उन्हें उनका डॉक्टर या डाइटिशियन इस बात का एक एहसास ना दिला दे दैट आर यू ड्रिंकिंग इनफ वाटर. सो फ्रेंड्स, सिंपल मैसेज है, हमारा जितना बॉडी वेट होता है उस हिसाब से 25 से 30 ml तक का पानी बॉडी वेट पर केजी पीना चाहिए. सो अगर मेरा वजन 60 किलोज है तो 60 into 3 कितना होता है, 1800 ml. एक ग्लास टिपिकली 200 ml जितना हम भरते हैं, हम यहाँ तक फिल करते हैं. सो दिस इज अबाउट 200 ml. आप अगर 1800 ml गिन रहे हो तो 9 such glasses should be your water consumption in a day. Now
a very nice thing that Dr. Zini brought across, that please have a positive relationship with food. मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा. She also mentioned about how we invest into finances. The same way we can invest into our health, which is going to stay with you till eternity, right? So positive relationship with food का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरा टाइम ये सोचे कि ये खाना अच्छा है, ये खाना खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है. पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फूड का मतलब ये भी होता है कि कुछ बेसिक चीजें मुझे पता है कि मुझे दिन में पानी अच्छे से पीना चाहिए, कुछ फ्रूट्स, रॉ सब्जी जिसको हम सैलेड कहते हैं, पकी हुई सब्जी अच्छे से खानी चाहिए, मुझे अपना प्रोटीन इनटेक डिसेंट रखना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना चाहिए. फूड की जो कॉम्बिनेशंस होती है, जो विरोधाभासी खाने हैं, वो नहीं खाने चाहिए, बल्कि जो करेक्ट कॉम्बिनेशंस है उनको खाना चाहिए. नाउ वंस यू हैव दिस नॉलेज, चाहे आप उसको इंटरनेट पढ़ के अक्वायर करो या बुक से अक्वायर करो या फिर प्रोफेशनल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट बनवाओ, एक बार अगर आपको ये नॉलेज मिलती है, to practice it daily, to respect that and keep doing it every single day is where you are building the positive relationship with food. आप मानते हो कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, मेरे बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए, मुझे एक लंबी डिजीज फ्री लाइफ देने के लिए अच्छी है, तब आपने अपना पॉजिटिव रिलेशनशिप फूड के साथ एस्टैब्लिश किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, चाइना में ना एक बहुत प्राचीन चाइना में एक प्रथा थी which has really inspired me, and I try to keep that in mind whenever I deal with any of my clients or patients. वहाँ ये हिसाब था कि जो डॉक्टर है उसे पूरे साल लोग कुछ ना कुछ फीस देते थे, जिसका जैसा इकोनॉमिकल स्टैंड है उस हिसाब से साल का एक लमसम फी उसको जाता था. लेकिन जब किसी फैमिली में कोई बीमार पड़ता था तो उस महीने डॉक्टर को फीस नहीं दी जाती थी. हो सकता है ये चाइना के कोई स्पेसिफिक प्रांत में फॉलो किया जाता था, बट इसका मोटा हिसाब आप सोचिए कि फिजिशियंस या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे उस टाइम में, उनका काम क्या था? वो आपको मेडिसिन तो देते थे जब भी आप बीमार पड़ते हैं, लेकिन वो आपको उस लेवल का ट्रेनिंग देते थे कि आप बीमार पड़ो ही नहीं. तो इसमें हमारी इम्यूनिटी को हाई रखने की बात आती है, और जहां इम्यूनिटी की बात आती है तो फूड सबसे पहले लेवल पे आता है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 23 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन जो लास्ट के 2 साल कोरोना पैंडेमिक में निकले हैं, आई हैव सीन रियली फिट पीपल अप्रोचिंग मी फॉर अ डाइट प्लान, जो शायद आगे के 20 सालों में मैंने इतना इजीली नहीं देखा है. मतलब लोगों को सडनली ये समझ में आया कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कितना महत्व रखती है अपने लिए. सो इन योर रूटीन लाइफ ऑल्सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स. जहां आप अपने वार्डरोब का सोचते हो, अपनी कार का सोचते हो, अपने घर की डिजाइनिंग सोचते हो, थोड़ा बहुत ये सोचना जरूरी है कि मेरा शरीर कैसा है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वेट कि मुझे एक्स किलोज वेट होना चाहिए, but also in terms of your stamina, in terms of your skin health, in terms of your digestive health, in terms of your overall mental health. क्योंकि अगर आप खाना अच्छा खाते हो, जो शरीर को लगता है सफाइस करता है, तो आप मेंटली भी चार्ज रहते हो. यू आर अलर्ट, यू आर हैप्पी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज गुड, आप चिड़चिड़ कम मचाओगे, आपको गुस्सा कम आएगा. So these are also other benefits by having a strong relationship with food. Take guidance. There are so many practicing nutritionists and dietitians. जो भी कोई certified है, जिसके पास at least 5 years and above का experience है, take consultation once or twice, जिससे आपको कुछ guidelines मिलेगी कि चलिए मैं XYZ कर रही हूँ, अब इसमें क्या मुझे और कुछ add करना है या किसी चीज को कम ज्यादा करना है, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट. चाहिए तो हर 6 months में टेक वन कंसल्टेशन, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चलता है, हॉट टॉपिक चलता है इनफैक्ट, कि कौन सा डाइट किया जाए. नाउ आई एम टॉकिंग ऑन द वेट लॉस एस्पेक्ट.
तो बहुत सारे डाइट्स मैंने भी अपने प्रैक्टिस में देखे। जब मैं नई थी तब हम 20 साल पहले ईटिंग एवरी 2 आवर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। फिर उसके बाद एटकिंस डाइट आया जो हाई प्रोटीन डाइट को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद लो कार्ब्स डाइट आया। फिर उसके बाद कीटो डाइट आया, इंटरमिटेंट फास्टिंग आया, जूस थेरेपी आया। बहुत अलग अलग किस्म के डाइट्स आते हैं। लेकिन आपको ये सोचना है कि ये सारे जो डाइट्स होते हैं, फैंसी डाइट्स होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हम इनको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। So the wise call is that choose a pattern which is slow, steady and achievable. Whether you are targeting to lose weight, whether you are targeting to lower your blood pressure range, whether you are targeting to cut down on your blood sugar levels, whether you are targeting to reduce your cholesterol levels, ये सारी चीजों को अगर आप डाइट के हिसाब से काम करोगे along with some exercise, I am guaranteeing you will see positive changes. हमारे क्लिनिक में ये काम होता है, रेगुलरली होता है। फिजिशियंस और मेरा कनेक्ट साथ रख के बहुत सारे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को वी हैव हेल्प देम रिड्यूस देयर मेडिसिन डोजेस एंड इन मेनी केसेस दे हैव बीन टेकन ऑफ मेडिसिन्स। सो ये बिल्कुल हो सकता है। फूड वर्क्स एज अ मेडिसिन, जो इतने सदियों पहले कहा गया है बाय वाइज पीपल, ये सही बात है। जो आयुर्वेद चार्य होते हैं, राइट, ये जो कहते हैं या आगे के जो फिलोसोफर्स कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज आई हैव सीन दैट हैपनिंग ओवर द इयर्स। अब इनके लिए कुछ एसेंशियल चीजें होती है। देखिए, क्या डाइट खाना है, कुछ बेसिक चीजें तो हम सबको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू बी एम्फसाइजिंग ऑन दोस बिकॉज इट्स अ रेपिटेशन। लेकिन बैक एंड में क्या चीजें जरूरी होती है? पहला होता है प्लानिंग। सबसे पहले मन को तैयार करना है कि हाँ, मुझे अपने खाने पीने पे ध्यान देना है बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प मी। अब उसके लिए प्लानिंग भी लगती है। वैसा खाना आप अरेंज करो अपने किचन में। जो खाना बनाता है उसके साथ वो डिस्कशन हुआ है कि भाई सारे फैमिली के लिए क्या खाना हेल्दी है। उसमें बच्चे होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हमारे जैसे 30s 40s के एज के लोग होते हैं। सो सबको सूट करे वैसा एक मेन्यू प्लान कीजिए। टेक टाइम। दूसरों का भी चॉइसेस क्या है वो सुन के, जो हेल्दी चीजें हैं, जो हमें पता है कि सीड्स नट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, फ्लैक्स सीड खाना है, व्हीट ग्रास जूस पीना है, एक्सेट्रा, आपको जो सही लगता है। सिट एंड मेक अ नाइस मेन्यू after discussing it with your family and then put it into practice. That is one thing which will help you take this and execute it in the long run. दूसरी चीज, जब भी आप अपने डाइट का सोचते हैं ना दोस्तों, कैलोरीज और सिर्फ कैलोरीज का ना सोचिए। अब हम ये समझ चुके हैं that it's an incomplete concept to think only of calories. You have to think nutrients. कि जो खाना हमने डिजाइन किया है अपने रोजिंदा जिंदगी के लिए, क्या उससे मुझे अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कैल्शियम हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिनसे हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं। क्या इसमें पानी का हिस्सा है, प्रोबायोटिक्स का हिस्सा है? इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स ज्वाइन करके जब आप काम करेंगे तो यू विल मेक अ डाइट प्लान जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी इनफ है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट आपने कम तेल यूज किया या आपने हर मील में एक सैलेड ज्वाइन कर दिया। मतलब थिंक बियॉन्ड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और चीज जो बहुत गहरी और टाइम टेस्टेड है कि जो हमारे ट्रेडिशन में खाने की चीजें है ना, उन चीजों का भरोसा रख के उनको आज भी खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम तिल के लड्डू खाते हैं, सत्तू है, सत्तू का हम पानी में घोल करके या दूध में या तो पराठा बना के खाते हैं। फिर गर्मियों के मौसम में गाजर, बीटरूट, इसकी एक कंजी जैसी बनती है विच इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक, राइट। ज्वार, बाजरी, नाचनी, इनकी रोटियां खाई जाती है। तो अगर आप पूरे इंडिया के फूड कल्चर को भी स्टडी करते हो, राइट, एज द मैप, you will get so many
some foods, and then you will realize that each of those food has its own benefit. So this is how you can think about planning it in your routine diet. अभी आज का जो टॉपिक है, it is saying that food for disease. So friends, जो points मैंने highlight किए, my intent of saying is that बीमारी तो खैर बात की बात है, अगर हम अपने बेसिक्स को कैसे डिजाइन करना है वो समझ के कुछ हद तक प्रोफेशनल हेल्प लेके इफ वी स्टार्ट वर्किंग, शायद ये मौका ही ना आए कि आपको कोई बीमारी हो और देन यू हैव टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल कि यार मेरा डाइट बना दो, मुझे XYZ बीमारी है. दिस इज द होल इंटेंट ऑफ टुडेज टॉक and these are a few points. I keep the forum open for my guest panelists also if they have any questions for me. Over to you, Lal sir. Thank you very much, Ms. Avni Parekh, for giving your views, and she has given complete details how the healthy food plays a very, very important role. She has given so many tips. But one thing very interesting she has mentioned about the China, some old tradition in which she says that the doctors or the physicians were getting fixed amount or some amount every month if the patient or the family, no one is sick. But in case if somebody fell sick in that any month, that monthly amount will not be paid to the physician. So the other way, according to her, is that the physician or the doctor is motivated to keep them healthy. So they give the training, give them the tips that you eat this food or have your healthy lifestyle so you will not feel sick. You want to say something? Sir, the concept is preventive medicine. Okay. जो अब हमारे कल्चर में वापस आ रहा है. अब हम आज मैं देखती हूँ बहुत सारे फिजिशियंस है वो पेशेंट्स को रेफर करते हैं, थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर हाई है या माइल्ड शुगर है, द डॉक्टर्स डोंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन. वो लिखते हैं कि यू मीट अ डाइटिशियन, अपने डाइट पे काम करो, मुझे मेडिसिन शुरू नहीं करना है. सो इट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन व्हिच वी आर लुकिंग बैक अगेन नाउ ऑन. So according to, thank you, Ms. Parekh. So according to Ms. Parekh, the main is preventive medicine, and there is a saying, prevention is better than cure. So if we will prevent our immune system, and especially with the diet, with the food, then we can keep our many of the diseases away. Thank you very much, Ms. Avni Parekh, for giving your views. Now, my question goes to Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand, आपने बताया और सबने बताया अबाउट फूड डाइट वगैरह. पिछले 2 वर्ष में हमने एक चीज देखी भारत की स्पेशली, कि जब ये कोविड हुआ तो उसमें बहुत देशों में, और जो अपने जिनका खाना जो जैसे रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सबने बात की, वो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं. मैं बात कर रहा हूँ पाश्चात्य देशों में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप और UK और USA की, उनकी हेल्दी डाइट से सब कुछ है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता था. लेकिन कोविड में हमने देखा कि इंडियंस का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि हमारे यहाँ जो मॉर्टिलिटी हुई है परसेंटेज वाइज देखें अगर, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू UK, यूरोप एंड USA. सो मेरा आपसे मानना है, क्वेश्चन ये है कि क्या वो खाना जो वो लोग खा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा ब्लेंडेड फूड खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन स्टिल देयर इम्यूनिटी इज सो वीक that they could not resist the COVID, while Indians had could face and we can survive, and mortality rate was quite checked. What you say about this, Dr. Yes, sir. I'm very happy that you raised this question. और ये बात सिर्फ इंडिया के लिए ही लागू नहीं होती, क्योंकि अगर आप गौर करें तो जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में दूसरे भी हमारे नेबर कंट्री हैं, उस समय भी डेथ रेट कहीं कम पाया गया बजाय पाश्चात्य देशों के. यहाँ डेथ रेट एनॉर्मसली हाई था, अलार्मिंगली हाई. तो कुछ ना कुछ तो बातें हैं हमारे भोजन शैली में, खाने पीने की शैली में, चाहे वो ये बात हो कि हमारा खाना जिसको दुनिया के कुछ देश और जिसको हमारे समाज के कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि वो गरीबों का खाना है, चाहे बाजरा हो, चाहे सत्तू हो, चाहे ज्वार हो, चाहे दूसरी चीजें हो. लोग कहना चाहते हैं कि गरीबों का खाना है, मेरे का खाना तो पिज्जा है, ये मैक्सिकन फूड है, थाई फूड है, चाइनीज फूड है. तो एक वर्ग ये समझता है कि ये खाना
जिसमें हमारी नई युवा पीढ़ी भी समझती है ये खाना पुराने लोगों का खाना है। अभी बहुत सारे लोगों को सत्तू का नाम भी नहीं पता होगा। आई एम वेरी डिलाइटेड व्हेन Avni spoke about it because I'm very crazy about sattu and I try to procure it from as many sources possible. Unfortunately, the real sattu is not so easily available in Bombay. Only chana grounded that is available. Real sattu come from Bihar or certain section of Varanasi or other places. So बहुत सारे लोगों को सत्तू का आइडिया ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को बाजरे की रोटी है, मक्के की रोटी है, जौ की रोटी का आइडिया ही नहीं है। उनको वो चीजें लगता है कि ये तो वो खाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि एक बड़ी सिंपल सी सच्चाई ये है कि खाना हमें वो खाना है जो हमारे शरीर को जल्दी से जल्दी पचा सके और लंबे से लंबे समय तक हमें एनर्जी दे सके, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सके तो 2-2.5-3 घंटे में, और 4-5-6 घंटे तक हमको एनर्जी दे सके। और वो खाना हमारे गांव में खेतों में किसान लोग खाते थे। हम उसे कहते हैं कि वो लोग मिसल पाव खाते हैं, उसल पाव खाते हैं, सिंपल रोटी खाते हैं, सिंपल सब्जी खाते हैं, सिंपल प्याज के साथ, सिंपल सब्जी के साथ, दाल के साथ खाते हैं। तो भले ही हमारे मॉडर्न मेडिकल वर्ल्ड ने कितनी भी मेडिकल एडवांस रिसर्च कर डाली है दवाइयों के बारे में, मगर ये मुझे थोड़े से दुख के साथ करना पड़ता है कि उनको रोकने के बारे में जितनी रिसर्च की जरूरत है शायद हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। उसमें हमारी तीनों ही महिलाएं जो विशेषज्ञ हैं वो उसमें और आगे भी चपड़ी देंगी और कोशिश करेंगे। खाने के बारे में जब आपने मुझे पूछा है तो मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा अगर आपके पास समय की अनुमति जी। हो। हमें वो खाना है जो हमारे को सूट करता है। एक नया सिस्टम ये बन गया है कि हमको पता ही नहीं हम खाना वो खाते हैं जो और लोग हमें खिलाते हैं। खाने की क्वालिटी भी, खाने की मात्रा भी। जबकि ये बात कितनी सिंपल सी है कि जो खाना टेबल पर आज हमारे सामने है वो खाना 15 मिनट के बाद हमारे अंदर जाने के बाद और शायद 5-10-15 घंटे के बाद वो खाना हमारे शरीर का अभिन्न अंग हो जाएगा। वो खाना हमारी WBC बनेगा, BC बनेगा, वो खाना वो खाना हमारी मसल की सेल्स बनेगा। तो वो एक 15 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद वो खाना मैं हो जाऊंगा। तो मेरे अंदर जो जा रहा है क्या उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो खाना एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हम लोग सीमेंट के बारे में सुनते हैं, ब्रिक के बारे में सुनते हैं। अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो क्या पुअर क्वालिटी की सीमेंट यूज करेंगे, पुअर क्वालिटी की ब्रिक में यूज करेंगे, पुअर क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल यूज करेंगे? सर्टेनली नॉट। हम चाहेंगे नहीं भाई जो बना रहे हैं मकान वो हमारा 50-60-70 साल चले। हम उससे में कट कॉर्नर नहीं करेंगे क्योंकि हमने थोड़ी सी उसमें अगर लापरवाही कर दी तो वो मकान हमारा जल्दी टूट जाएगा। ये एग्जाम्पल तो बड़ी सिंपल समझने वाली है। तो जो खाना मुंह में डाल रहे हैं हमारे शरीर में आ रहा है, कुछ घंटों के बाद वो हमारे शरीर का और हमारे असर का हिस्सा बनने वाला है। क्या उस पर हमारा कोई निरीक्षण यानी सुपरविजन जो उस पर कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है? जरूरी है कि हम इस चीज को आंख खोल के, जैसा हमारे किसी एक वक्ता ने भी कहा था, जागरूक होना, कॉन्शियस होना खाने के बारे में। तो खाने के बारे में हमें जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। मैं इस वर्ड को थोड़ा सा और जोर दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर हम खाना खाने के बारे में, खाने के कंटेंट के बारे में भी कॉन्शियस नहीं है। और जब हम खाना खा रहे हैं तभी भी हम कॉन्शियस नहीं। हम टीवी देख रहे हैं, हम फोन पर बात कर रहे हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हमें पता ही नहीं उस खाने का टेस्ट क्या है, हमें पता ही नहीं हमने कितना खा लिया। तो कई बार अनजाने में या अनकॉन्शियसली हम ज्यादा खा जाते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फीड कर देते हैं जिसको हमें ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने पेट को खाना खिला रहे हैं उतना ही खाने को पचाने के लिए पेट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को काम करना पड़ रहा है, उतनी एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए सारे ऑफिस में लंच टाइम तो 1 घंटे का होता है। हालांकि खाना तो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में खाया जा सकता है, लेकिन 1 घंटे का क्यों होता है? उसके बाद सुस्ती रहती है। लेकिन हम लोगों ने ये भी सुना है एग्जीक्यूटिव लंच होता है कि वो इतना खाना खाते हैं, इतना कम खाना खाते हैं कि वो दोबारा वापस अपनी टेबल पर डेस्क पर आके काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी 1-2 टिप हम बताना चाहेंगे। जो चीज इतनी सरल है, इतनी सादगी से है, इतनी सहज है और इतनी प्रैक्टिकेबल है कि हमारे स्टमक को खाने से पूरा भरने की जरूरत नहीं है। स्टमक ने हमें कभी नहीं कहा कि भरो खाने से। ये तो हमने बचपन से मान लिया है। असलियत में तो हमारा स्टमक को सिर्फ 1/3 ही भरना चाहिए खाने से।
1/3 भरना चाहिए हवा से, 1/3 भरना चाहिए थोड़ा लिक्विड से, 1/3 खाली रहना चाहिए, हवा रहनी चाहिए, 1/3 खाली ही रहना चाहिए। लेकिन हम तो उसको पूरा भरना चाहते हैं, तभी तो हमें डकार आती है। ओह! और वो डकार को माना तभी खाना हमको पसंद आया। और अगर खाने में डकार नहीं है तो लोग बोलते हैं भाई खाना आपको पसंद नहीं है, थोड़ा और खाइए जब तक आपको डकार ना आने लगे। हमारे उत्तर भारत में इस तरह की बहुत सारे इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होते हैं, राजस्थान में और यूपी में, कि खाना खाने के बाद जब तक पता ना चले कि आपने खाना स्वाद से खाया है, तब तक जो मेजबान है वो उसको पूरा संतुष्टि नहीं होती, और खाइए और खाइए और खाइए। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग जबरदस्ती और खिलाने की कोशिश करते हैं वो हमारे हितैषी हैं कि हमारे दुश्मन। खाने के बारे में एक दो छोटी बातें हो। खाना खाना है घर में तो हाथ से खाना। खाना हमारे लिए पूजनीय है, खाना हमारे लिए सम्मान की चीज है। खाना भोजन वो है जो कल हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा, कल हमारे शरीर में होगा। हम उस खाने को छू कर उसकी कंसिस्टेंसी को, उसको फील करें हाथ से, मुंह में डालने से पहले उसका सम्मान करें हाथ से, बाद में जबान से, पहले हाथ से उसको फील करें, बाद में जबान से। आप देखिए साउथ इंडिया में सब लोग हाथ से खाते हैं। फिलहाल जहाँ रहते हैं कर्नाटका में ही, ऑल ओवर द अदर स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु एंड आंध्रा एंड कर्नाटका, बड़े आराम से वो लोग बिना झिझके हुए हाथ से खाते हैं। उत्तर देश के और प्रांत के लोगों को उनका वो हाथ से खाना बड़ा अजीब लगता है। कई बार वो लोग पूरा लड्डू बनाते हैं चावल का, दाल का बड़ा सा लड्डू, उसके बाद खाते हैं। कुछ लोगों को शायद अजीब लगता होगा, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि वो हमसे ज्यादा स्वस्थ है, वहाँ इतनी बीमारियां नहीं है, वहाँ इतनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं है। तो खाने को हाथ से खाना है। ठीक है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो शायद उस तरह ना खा सके हाथ से, वहाँ की मर्यादा हमें, वहाँ का प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, कटलरी यूज करेंगे, लेकिन घर में हम हाथ से खाएंगे। और एक या दो छोटी छोटी और बात, खाना खाना है, काफी लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई 2 रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। मगर जब हम 2 रोटी खाने बैठते हैं, हालांकि 2 रोटी कहना भी थोड़ा अनुचित सा वर्ड लगने लगा है, उसको भोजन कहें, मील कहें, तब हम बहुत जल्दी में खाते हैं। जैसे कि हमने एक लेटर बॉक्स खोला पोस्ट ऑफिस का, उसमें हमने डंप कर दिया लेटर। हम उस खाने को ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देते, उसे एंजॉय नहीं करते। जैसा अभी थोड़ी देर पहले अवनी ने कहा था कि फ्रूट जूस की बजाय फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि उसमें सलाइवा निकलेगा, ऐसे ही खाने के हर मोर्सल को बहुत आराम से, बहुत चबा के खाना है। तो डायबिटिक लोग जो होते हैं उनको उनके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप खाना जल्दी में खाते हैं, शायद इसलिए आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उसी खाने को धीरे धीरे खाइए, बहुत स्लोली खाइए, तो आपके डायबिटीज कम होने के चांसेस कम होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम की बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और शायद मिस्टर लाल, आपको हजारों नहीं लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा कि आपने मंच इकट्ठा किया है, जो अच्छे अच्छे विचार प्रकट किए जा रहे हैं। न जाने कितने हजारों लोग बीमारी से बच सकेंगे, हॉस्पिटल जाने से बच सकेंगे, दुखी रहने से बच सकेंगे, दवाइयां खाने से बच सकेंगे। मैं दवाई वर्ड को मैंने इसलिए मेंशन किया है कि हम दवाई खाने को बड़ा आसान समझते हैं बिना जाने हुए। ये केमिकल्स हमारे पेट में जाकर हमारे पेट की कल्चर को जितना फायदा दे रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान भी दे रहे हैं। काफी लोगों ने सुना है बैक्टीरियल फ्लोरा। वो बैक्टीरियल फ्लोरा एक बहुत पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों की तादाद में होती है, और वो हमारे अंदर के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए होते हैं। इस टॉपिक पर काफी रिसर्च की जा रही है साइकियाट्री में, गट ब्रेन एक्सेस पर। और उस बैक्टीरियल फ्लोरा को बहुत सारा दवाइयां उसको बिगाड़ देती है, डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है, जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो बहुत सारी दवाइयों में जो केमिकल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन तो करते हैं। जैसे कि एंटासिड कितना कॉमन हो गया है, एंटासिड का मार्केट 100 गुना बढ़ गया है पिछले 10 साल में, या बहुत सारे एंटीबायोटिक। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो अपना काम करने के अलावा आपके पेट के अंदर के सिस्टम में कितना नुकसान भी कर रहे हैं। फिर आप उस नुकसान के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरी दवाइयां लेते हैं, तो दूसरी दवाइयां को नुकसान करती है, फिर आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरी दवाइयां लेते हैं, और आप अपने आप को खुद के बनाए हुए ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि खाने पर ज्यादा जोर दीजिए, दवाइयों पर नहीं। दवाइयां शॉर्ट टर्म फिक्स हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपना धर्म करता है, अपना फर्ज करता है कि जो उसकी ड्यूटी है, उसके पास जितना समय है हम उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे डॉक्टर सारा ख्याल कर दे, तो शायद मुश्किल होगा। बैक टू यू मिस्टर लाल।
Thank you very much, Dr. Rajiv Anand, for giving so many important tips. और जो एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि खाना आप जो खा रहे हैं अपने शरीर के लिए खा रहे हैं तो सोच के खाइए। लेकिन हमारे भारत का जो सबसे बड़ा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है कि जब भी कोई मेजबान बुलाता है तो वो इतना आग्रह करता है आतिथ्य में, और अगर वो नहीं पूछेगा आपको कि नहीं अब ये नहीं खाया या गुलाब जामुन नहीं खाया तो आप, और उस वक्त आप मना नहीं कर पाते, यहीं आके दिक्कत होती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी आपको अगर खाने के लिए बुलाए तो उसको मना करें बड़े प्यार से, क्योंकि अगर आप वहां चले जाएंगे तो फिर आप रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे, तो वो कहेगा कि इनमें एरोगेंस है, ये तो खाना भी नहीं खाना है हमारे यहाँ का, या पूछेगा खाना आपको पसंद नहीं आया। और पर लेकिन लोगों को समझना चाहिए जो डॉक्टर राजीव आनंद सेज वेरी क्लियरली कि किसी को जोर दे के खाना मत खिलाइए, जिसको जो खाना है वो अपने हिसाब से, हर एक के अपने शरीर का अपना अनुपात है, उस हिसाब से खाता है, उसे खाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव आनंद। आई एम श्योर कि आज जो आपने बात कही है हमारे व्यूअर्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं शादी ब्याह में सब जाते हैं और किस तरह बुफे में और वैसे खाया जाता है जहाँ सैकड़ों तरह के आइटम होते हैं, वो सोचते हैं हमने ये नहीं चखा वो नहीं चखा, वो भूल जाते हैं कि आपका जो बॉडी है उसको तो एक फिक्स अमाउंट ही खाना चाहिए, आपके चखने में गड़बड़ ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ माय क्वेश्चन गोज टू मिस सरिता वार्ष्णेय। सरिता वार्ष्णेय जी, हम ब्लेम करते हैं अपने को हमारे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये तो एक मार्केट ड्रिवन चीज है। आज एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, हम अपने बचपन में डॉक्टर राजीव आनंद को पता है कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं आते थे, अब तो हर चीज का एडवर्टाइजमेंट इतना आता है, आदमी टेम्प्ट होता है। तो आपको नहीं लगता कि जो ये हम आप बात कर रहे हैं फूड की, हम आप कितने लोगों को समझाएंगे? वो तो रोज नए नए तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स के हों, चाहे वो पैकेज्ड फूड्स के हों, नमकीन के हों, और वो इतने अट्रैक्टिव बनाएंगे कि उससे कोई रोक नहीं, रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको लगता नहीं है कि इस तरह का गवर्नमेंट को, हालांकि लाती है गवर्नमेंट लॉ, लेकिन वो लॉ सब बाईपास हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए कि जो भी चीज जो आप लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो समझते हैं कि ये चीज नुकसानदायक है, उसका किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट, वेदर सरोगेट एड और डायरेक्ट एड, शुड नॉट बी अलाउड, जिससे हमारे जो नई जनरेशन है उसकी हेल्थ को से खिलवाड़ ना किया जा सके। सरिता वार्ष्णेय जी। मेरी राय में तो ये लगता है कि जितने एडवर्टाइजमेंट फूड है उनसे हमें बचना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि ये फूड एडवर्टाइज हो रहा है, ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। उन्हें पहले न्यूट्रिशन या डाइटिशियन से कंसल्ट करके, मेरी अपनी ओपिनियन में होममेड फूड ही खाने चाहिए, सीजनल फूड खाने चाहिए। जो फूड हमारे एडवर्टाइजमेंट से आते हैं सारे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता ही है। उस फूड को हम ये समझ नहीं सकते कि आप ये फूड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एडवर्टाइजमेंट फूड से बचना चाहिए, सीजनल फूड खाने चाहिए, होममेड फूड खाने चाहिए। जहां भी डाउट हो अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, अपने हेल्थ के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने हम किस वेदर में रह रहे हैं, हमारे एरिया का एटमॉस्फेयर क्या है। अगर हम ठंडी जगह रह रहे हैं तो उस हिसाब के फूड हमें प्रेफर करने चाहिए, अगर हम समर वाली जगह रह रहे हैं तो उस हिसाब के फूड प्रेफर करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट फूड पर कभी नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट आता है तो आदमी अट्रैक्ट होता है। और अब तो, पहले तो एडवर्टाइजमेंट फूड के लिए था, अब तो हेल्दी फूड की बात करता है। एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जाता है कि वो उससे नहीं, लगता है उसके कि लिए इससे बढ़िया हाँ, हेल्दी फूड कोई नहीं है, तो आदमी फिर हेल्दी फूड में उसको ही लेना चाहता है। नहीं, उसके लिए ना हमें, हमारी गवर्नमेंट को भी उसके लिए भी जो हमारे एडवर्टाइजमेंट फूड होते हैं उनसे थोड़ा सा उनके फूड का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। और जी उससे बचने के लिए हमें अपनी डाइटिशियन या उसको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। पहले जमाने में कोई एडवर्टाइज फूड होते ही नहीं थे। जी पहले जमाने में आप देखिए मोटा अनाज खाया जाता था कि आप ज्वार बाजरा सब खाते थे। अब तो आपका है कि कटहल का आप पिसा हुआ आटा आप मिलाएंगे अपने उसमें तो डायबिटीज कम हो जाएगी, उसमें फाइबर मिलेगा। लेकिन हमारे पुराने फूड थे उनमें सब में फाइबर था। तो जी ये जी जी इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि हमें किस फूड से जी क्या फायदा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे दर्शकों आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपना मुनाफा कमाने के लिए कंपनी कुछ भी कर सकती है, उसको हम अवॉइड करना चाहिए और अपनी डाइटिशियन से सलाह लेनी चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन गोज टू डॉक्टर जिनी नंदा। डॉक्टर जिनी, you mentioned about raw vegetables, fruits. In India,
in India, today the condition is raw vegetables full of chemicals, fruits full of chemicals. Even the milk is coming either in Tetra Pak or in the plastic pack. Curd is also coming. Previously, we used to have in our home made curd, but nowadays people are buying curd from the market. So how we can have those things, raw vegetables with this pollution, with this all chemical thing? If I am eating the raw vegetables, I will come to know after some days that I have developed some disease. To prevent the disease, so what is your suggestion? How we should go for the these types of raw vegetables or fruits which are free of all infectious things or the chemicals? Yes, this is a very valid point, that nowadays the food which is in the raw vegetables which we are getting in the market, they are filled with pesticides or herbicides or insecticides have been grown like that. So one thing what we can do from our side is that once we get these raw vegetables, one thing is that you must clean these vegetables very well. Cleaning of the vegetables so that you can, especially the raw vegetables which you are going to eat, should be should be done so that the those आज हमें जो strawberries भी मिलते हैं market में, या you see them, they are brightly colored, but actually if you come and just wash them, just put them in water for 10 minutes, you will see the red color in the water. So it is a very important part is that you should clean these vegetables. Second thing, one more thing is that we should incorporate the habit of having more of the organic vegetables. It is good that people are getting more and more aware about these things, about these insecticides and pesticides in the food. So in your area, you see that there are these local farmers market which they put up. So we should encourage those farmers market where we get these organic and healthy vegetables. But doctor, again the question is how to ensure that whether this vegetable is organic. Because if you go to any mall today or a supermarket or any food chain, you will find organic vegetable twice or thrice the rate of the normal vegetable. But there is no certification from the government. Nobody can certify. And you spoke about the farmers market. There also, how we know that this vegetable which we are purchasing from the farmer market is organic? Because organic itself it's not easy to farm the organic. It's an expensive thing. And the output is not that much what we are getting from this all fertilizer and things. So what do you say about that? Yeah, so basically what I would like to say is that, in my opinion, the local groups, there are these local groups, if they are organizing things like that, we should encourage them. We should encourage that we should buy things from them rather than going to the supermarkets or these to these departmental stores where they will advertise as organic food. And also our government should play a very important role in trying to curb these kind of advertisements where they advertise that it is going to be organic. I recently read a news that Sensodyne, which is such a big company, which is promoting the toothpaste for desensitizer, has been filed. A lawsuit of crores has been filed against them because of faulty advertising. So if these things are brought into practice, they will, they automatically, the manufacturers and all will be, they will be more aware of not doing any kind of false advertisement. Okay. Thank you very much, doctor. Now my question goes to Miss Avni Parekh. Miss Avni, you have, don't you think in India, the dietitians or the nutritionists roles starts from the primary schools? The primary schools, the colleges should have a dietitian, should give this diet, that this all school, the children should have this diet at home, as well as the same thing whenever they are bringing their tiffins in school, it should be checked whether they are following that diet or not. And because see, how to create awareness? The problem is that a housewife or a working lady, she knows that, okay, this cereal is good. Now, people are giving cereal. And in one of my programs, one of the experts said the cereals are very harmful, although there are so many things, because cereal is full of sugar. And we are using the sugar from the very childhood thing. So all the diseases, what we are giving to the children today, we are using. Don't you think that this type of thing can be avoided if a professional, a dietitian or nutritionist is attached
from all the schools, and it can be monthly or a weekly or fortnightly. They can check whenever, and they give the proper diet plan so that the students can use that. What you say about this? Sir, you have nailed it. मतलब मैं और मेरे कुछ डाइटिशियन दोस्त हैं, हम लोग 1999 के पास आउट से, और ऑनेस्टली सर मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाती हूँ, बट मोस्टली ये भी एक सच है कि इंटरनेशनल स्कूल्स ही हमें बुलाते हैं टू गिव अ लेक्चर टू द स्टूडेंट्स ऑफ हायर ग्रेड्स, जैसे 5th स्टैंडर्ड और उसके ऊपर के बच्चों के लिए हमें बुलाया जाता है टू टॉक अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, और छोटे बच्चे हैं अगर तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है। लेकिन ये जो सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है ये सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल्स करते हैं और बहुत छोटे परसेंटेज पे होता है। एंड व्हेनेवर आई हैव गॉन, अपने तरफ से I have always put this word to the principal of the respective school that madam, there are a bunch of us who would like to serve nutrition education in the school from the primary sections. हमें हफ्ते में एक लेक्चर दीजिए, हम आएंगे, बच्चों को जो भी बेसिक गुड न्यूट्रिशन है इन देयर एज अप्रोप्रिएट मैनर हम उनके साथ डिस्कशन करके कुछ थॉट एटलीस्ट इनिशिएट करेंगे। तो बच्चे जब बचपन से ये चीजें सुनेंगे तो जब बड़े होते हैं ना तो वो चीजें हमारे लिए लैटिन ग्रीक नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमें गूगल को पूछना पड़े दैट व्हाट आर प्रोबायोटिक्स, और ना हमें जाके कोई रिसर्च पेपर देख के ही समझ में आए दैट टमेटोज आर गुड फॉर हेल्थ। इंडिया इज ब्लेस्ड कंट्री, इतना अच्छा खाना यहाँ पे एग्रीकल्चरली ग्रो होता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एट द सेम टाइम ओवर एक्सपोजर टू एडवर्टीजमेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो गया है ना। थोड़ी देर पहले जो आप बात कर रहे थे सीरियल्स की, एंड डॉक्टर आनंद ऑल्सो सेड कि हम लोग फैंसी फूड्स, मतलब जो दूसरे कंट्रीज के फूड्स को हम बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन व्हाट आई थिंक वी शुड डू इज ना बी अ लिटिल माइंडफुल कि मेरे पास जो है उसमें से क्या चीजें अच्छी ऑलरेडी है। अगर मेरे पास खान पान की जितनी सामग्री है मेरे कल्चर में है, मेरी कंट्री में लोकली अवेलेबल है, अगर वो अच्छा है तो मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं दूसरी कंट्री का जो प्रोडक्ट यहाँ पे बेचा जाने की कोशिश की जा रही है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स मैं उसे अपनाऊं। I'll give this classic example is with soybean. So सर 23 साल पहले काम करना शुरू किया डाइट्स बनाना, और आई गेस लगभग 5-7 साल तक सोयाबीन वाज अ बूम। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन आटा, सोया नट्स, सब कुछ। इंडिया इज नॉट वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन, बट वेस्ट से ये चीज यहाँ पे आई और उसको जिस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया गया कि इट इज हाई इन पूफा एंड रिसर्च सेज दैट पूफा इज हार्ट फ्रेंडली, तो वो एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया। उसके बाद और दूसरे 2-3 साल के बाद आया कि पूफा इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मूफा लेना चाहिए, तो फिर ऑलिव ऑयल का नंबर आ गया। नाउ इंडिया इज नॉट इवन अ ग्रेट प्रोड्यूसर ऑफ ऑलिव ऑयल, बट इफ यू सी द फैटी एसिड कॉम्पोजिशन ऑफ पीनट ऑयल, राइट, उसमें कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स आर ऑन द हायर साइड, but also polyunsaturated fats and monounsaturated fats are there, right? फिर सरसों का तेल है, फिर डाउन साउथ जो नारियल तेल यूज होता है उसमें मूफा की तादाद अच्छी खासी है। सो माय रिक्वेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज दैट जो हमारे पास अच्छा है उसका मान करके उसको यूज कीजिए। किनवा है, किनवा ने हलचल मचा दी, सब लोग ज्वार का दलिया, मक्का का दलिया, गेहूं का दलिया, ये जो चीजें अपने पास है इसको आप अगर दाल के साथ कंबाइन करके खिचड़ी बना के खाते हो, आप उतना ही प्रोटीन पाते हो जितना आप एक इक्वल अमाउंट ऑफ किनवा से खाते हो। तो व्हाई डू वी गेट कैरिड अवे सो फास्ट? माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट. Yeah. Second point, sir. Yeah, well, I think now the next time we will take, because paucity of time. Thank you very much, Yes, Ms. sir. Amnipal. So, viewers, you have seen today, the experts have given their opinion very, very loud and clear. Their opinion is that the food can prevent the diseases, that can protect you from disease, subject to that you will listen
to the proper dietitian, take their advice. Earlier, when we used to have a joint family, then the role of grandparents or great grandparents to guide what type of food is suitable. But nowadays, because of the nuclear family, because of the work pressure, people are having no time. Either you go for the Google search, but the Google search, the problem one should understand is that Google search is basically limited to many other countries. So there is a lot of difference. What is there good in USA, it cannot be good in India. So one has to understand. So we should try to consult a local dietitian who can guide you very nicely. And the schools and the colleges, and especially from the primary school, if we will take the help of the dietitians, they will guide what type of food to be given. The day will not far, then we can say that we are really a healthy India. Right now, we are just debating, but we have to. And the responsibility lies on us also. We must not feed our children unnecessarily because somebody says he or she is thin and we are just giving and giving food. No, it is not. Consult the dietitian, take the proper advice and do the needful. Thank you very much. And today's program has been live telecasted by V4 News, Karu News, V4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon se, Samvad Sarokar News, Bharat Post News, Gyan, as well as for shown live on Facebook and YouTube. And our endeavor to bring to you every day new topic in media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. And tomorrow is our thought leadership series, in which I will be asking the question to one of the guests only, because there will be one guest only. And tomorrow our topic is entrepreneurship, myths and facts. And my guest is Professor Dr. Sudhir Saran, former visiting professor, IIM Lucknow, University of Texas at Dallas, founder Dr. Saran, consultant in California, USA. So please tune in tomorrow for media conference Lal Goel at 10:30 a.m. Thank you very much, Dr. Rajiv Anand. Thank you very much, Ms. Sarita Vashne. Thank you very much, Dr. Jini Nanda. And thank you very much, Ms. Avni Parekh, for giving your very, very informative and enlightening views. And I'm sure today's program is very enlightening because the viewers will now have come to know through the experts' opinion that what type of food we should take and how to take, and what duration, and about the quality of food. Everything they have explained. But still, if you have any queries, you can post it on any of the channels so that we can pass it to the experts and they will be happy to